we have to look at obesity like a disease. Should I opt for anti-obesity drugs? सिर्फ कॉस्मेटिक जो हम लोग सोचते हैं मोटापा है, वो एक्चुअली अगर एक स्टेज के बियॉन्ड है तो वो एक बीमारी है. The market of weight loss drugs in India has become almost 4.5 times of value. Why this is happening? Excess body fat leads to diabetes, leads to high blood pressure, leads to cardiac things. Sir, can we say that this is a magic drug? Large segments of the population are thinking of them as weight loss drugs. They are actually anti-diabetic drugs. Hello, I'm Shalini Bharadwaj and you are watching ANI. So today we are going to discuss about new revolution. You must be thinking, what is this new revolution? This new revolution is weight loss revolution. We have with us a renowned endocrinologist, Dr. Amrish Vittal, who is going to give us the facts, the myths about weight loss drugs. Sir, welcome to ANI. Thank you, Shalini. Sir, this is even my personal question also. Do I need to reduce weight? Or if I need to reduce weight, should I opt for anti-obesity drugs? So I think we need to look at weight in a different way. We have to look at obesity like a disease. मतलब ये नहीं कि सिर्फ कॉस्मेटिक जो हम लोग सोचते हैं मोटापा है, वो एक्चुअली अगर एक स्टेज के बियॉन्ड है तो वो एक बीमारी है. जैसे उसकी वजह से ही एक्सेस बॉडी फैट लीड्स टू डायबिटीज, leads to high blood pressure, leads to cardiac things, leads to fatty liver. So ये सारी चीजें, they are all sort of affected by our proportion of body fat. In particular, the fat which is inside, around the viscera, around the organs. तो किसको ट्रीटमेंट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, बेसिकली इसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं. अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स 30 से ऊपर है, 30 से ऊपर, तो वेट, अकेले वेट का ही इंपैक्ट इतना होता है. सो देयरफॉर इफ यू हैव अ बीएमआई ओवर 30, यू आर अ कैंडिडेट फॉर वेट लॉस ड्रग्स, प्रोवाइडेड यू हैव ट्राइड एवरीथिंग विद लाइफस्टाइल एंड फेल. सो ये वेट लॉस ड्रग्स कोई लाइफस्टाइल का सब्स्टिट्यूट नहीं है. लाइफस्टाइल रिमेन्स द फाउंडेशन, बट वेट लॉस ड्रग्स हेल्प अस, क्योंकि यू हैव सीन people are so frustrated by their inability to lose weight, and everyone goes through these cycles of on and off. You lose some weight, it comes back on. It's very frustrating, both for the doctor and as well as for the patient. So these drugs offer us a path there. So a BMI, body mass index, of over 30. But it's not just that. When we look at excess weight, we are also looking at associated conditions. So if you have associated diabetes or fatty liver or blood pressure, all those things, then even at a BMI of 27, you may be a candidate for these drugs. So just plain obesity above 30 BMI, and those who are between 27 and 30 if they have other disorders. This is the recommendation, this is the approval by the Drug Controller of India for the use of these medicines. So as we have seen, there is one latest data that we have currently. That is the market of weight loss drugs in India has become almost 4.5 times of value over the last 5 years. How do you see this? Why this is happening? I think this is nothing. I think it is just exploding now, because these drugs were introduced in India only like end of March, I think, or early April. And that too, only one of them. The second one has come in later, much later. So we've only had them for like 4 months or so. So the demand is high because the actual need is also high. So the number of people who can be benefited by these drugs is very high. So therefore, right now the biggest hindrance is the cost. Right? Now, once the cost comes down, as we hope sometime next year perhaps, then the reach and the availability will increase and more people will have access. पर इसमें दोनों sides हैं. इसके फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं. So what are the side effects, sir? हाँ, नुकसान ये है that if people are using it indiscriminately, without medical advice, for pure cosmetic reasons, तब तो प्रॉब्लम हो सकती है ना. एक तो कोई रीजन होना चाहिए, जो मैंने क्राइटेरिया बताया वो होने चाहिए. दूसरा, मेडिकल सुपरविजन इतना आसान नहीं है.
करेक्ट डोज से स्टार्ट करना, डोज को एडजस्ट करना, अगर साइड इफेक्ट्स होते हैं तो उनको मैनेज करना, उसके बाद जब वेट लॉस हो जाए पूरा जितना हम चाहते हैं तो उसको धीरे धीरे कम करना. सो देयर इज अ सर्टेन स्किल इन्वॉल्व्ड इन दिस. नाउ द प्रॉब्लम इज दैट large segments of the population are thinking of them as weight loss drugs. They are actually anti-diabetic drugs with additional benefits of weight loss. They do many things to our body metabolism. सिर्फ वजन नहीं कम करते. तो इसलिए इनको दवाई की तरह, जैसे आप डायबिटीज की दवाई अपने आप नहीं लेते हैं, ब्लड प्रेशर की दवाई अपने आप नहीं लेते हैं, for the same thing should apply to these. You should be under care of a physician who will adjust your dose, manage your side effects, and only then you will benefit. Otherwise, people are thinking of it as a pure cosmetic thing. थोड़ा सा बेटी की शादी है, 3 किलो वजन कम करना है, तो थोड़ा कर दीजिए, ऐसे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा. तो जैसे एक्सेस बढ़ेगी, अगर दाम कम होता है, एक्सेस इंक्रीजेस, then you will find that misuse will also increase. Those who need it will be getting it much more, but also those who are really not candidates, वो भी कोशिश करेंगे कि वो ले लें. सर, जैसे कि आपने कहा कि आपकी ओपीडी में अब जो लगातार लोगों की जो डिमांड है और जो क्वेश्चंस है उनके अनआंसर्ड हैं और वो पूछते हैं आपसे बार बार कि भाई ये ड्रग्स एग्जैक्टली है क्या, पर्पस क्या है, क्या वो इसको ले सकते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं जनरल अवेयरनेस की कमी है. वहीं दूसरा एस्पेक्ट सर ये भी है कि यूएस में एक कंपनी की जो ड्रग्स हैं एंटी ओबेसिटी ड्रग्स, वो काफ़ी लॉ सूट्स जो दे आर फेसिंग, so that includes it because of the side effects. So what are those side effects? क्या आप अपनी ओपीडी में इस तरह के पेशेंट्स देख रहे हैं? देखिए, कुछ साइड इफेक्ट्स बहुत कॉमन हैं और हम लोग देख रहे हैं. वो साइड इफेक्ट्स हैं नौसिया, थोड़ा मछली होना, कभी कभी उल्टी होना, या कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, ये सब साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं. तो ये साइड इफेक्ट्स तो कॉमन है, ये शुरू में होते हैं, फिर सेटल हो जाते हैं, पर इनका भी मैनेजमेंट चाहिए होता है. इसके लिए डॉक्टर की सलाह आपको लेनी चाहिए. अगर ऐसा होता है पहले ही लेनी चाहिए. बी प्रिपेयर्ड मेंटली फॉर दीज काइंड ऑफ साइड इफेक्ट्स. दूसरा साइड इफेक्ट जिसकी लोग बात करते हैं, वो कहते हैं कि मेरी मसल भी कम हो जाएगी, आई लूज मसल. तो वो प्रॉब्लम ये है दैट अगर आप वेट लूज करते हैं किसी भी कारण, तो आप थोड़ा मसल भी लूज करते हैं. वो इन दवाइयों की वजह से नहीं होता है. दैट इज अ पार्ट ऑफ वेट लॉस. Any weight loss means muscle loss. So इसलिए हाई प्रोटीन डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज इंक्लूडिंग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ये बहुत जरूरी है. जो लोग इन दवाइयों को ऐसे ही ले रहे हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ वेट लॉस, विदाउट एनी नोटिसिंग देयर प्रोटीन इंटेक, मॉनिटरिंग देयर प्रोटीन इंटेक, विदाउट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस, देन दे विल लैंड अप इन प्रॉब्लम्स लेटर. ये तो कॉमन. नाउ द अदर थिंग इज दैट जो लॉ सूट्स की बात कर रहे हैं आप, तो वो तो खैर लीगल वाले बताएंगे, लेकिन उसमें मुझे तो बहुत सारे एकदम फ्रिवलस लगते हैं. एक्सेसिव वॉमिटिंग, अब ये अपने आप ले रहे थे आप, क्या वॉमिटिंग हो गई एक दिन तो छोड़ दीजिए दवाई, डॉक्टर से पूछिए. तो कुछ तो ऐसे हैं. एक जिसका है वो आई रिलेटेड साइड इफेक्ट है, विजन लॉस, NAION, विच इज एन एक्सीडिंगली रेयर कंडीशन. अभी एस्टैब्लिश्ड साइड इफेक्ट नहीं है वो इन दवाइयों का. आधी स्टडीज शो करती हैं कि है, आधी स्टडीज शो करती हैं कि नहीं है, क्योंकि उसके लिए हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्टडी. जिनको शुरू किया जा रहा है उनको फॉलो अप किया जाए और तब देखा जाए कि उनमें हो रहा है कि नहीं. तो ऐसा तो किसी ने पाया नहीं है अभी. जब तक लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज नहीं होंगे ये आंसर नहीं मिलेगा. दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो NAION के बारे में है वो ये है कि ये एक्सीडिंगली रेयर कंडीशन है. तो अगर लेट्स से थियोरेटिकली वर्स्ट केस सिनेरियो, आई एम होपिंग कि नहीं हो, कि वो बढ़ जाता है थोड़ा, तो फिर भी वो बहुत रेयर रहेगा. मतलब 0.02 से 0.04% इस टाइप का डिफरेंस आएगा. तो यस, वी हैव टू कीप आवरसेल्व्स अलर्ट. एवरीवन शुड बी गेटिंग अ डिटेल्ड आई चेक बिफोर स्टार्टिंग दीज मेडिसिन्स. पर ऐसा कोई डरने की बात नहीं है. देयर इज नो रीजन टू बी स्कैर्ड ऑफ दीज ड्रग्स. इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, इस कैटेगरी की ड्रग्स हम लोग 20 साल से यूज कर रहे हैं. 20 years we have been using the predecessor, जो इसके पहले की दवाइयां थी इसी कैटेगरी फॉर डायबिटीज मैनेजमेंट. पर उनमें वेट लॉस इफेक्ट इतना मार्क्ड नहीं था, तो कभी ने कोई डिस्कशन ही नहीं किया. ये साइड इफेक्ट्स उनमें भी थे, नो वन एवर डिस्कस. बट बिकॉज ऑफ द वेट लॉस दे हैव कॉट द पब्लिक आई एंड एवरीवन नाउ. कोई भी दवाई अगर सब लोग लेना चाहते हैं तो फिर साइड इफेक्ट्स भी कुछ आएंगे जरूर, क्योंकि इतना ज्यादा हमारा बढ़ जाएगा बेस.
तो कोई कोई साइड इफेक्ट तो आएंगे ही. तो दैट इज वेयर वी आर एट द मोमेंट. There is no reason to be scared, but of course we should always follow medical advice. Number one. Number two, doctors are and should be alert about any possible side effects. Sir, there is another side effect, that is your stomach paralysis. What exactly it is? So one of the actions of these drugs is to reduce stomach movement. That is the action of GLP. तो वो ऐसे थोड़ी स्टमक पैरालिसिस हो जाएगा कि सडनली स्टमक पैरालिसिस हो गया. अगर आपको साइन सिम्टम्स आ रहे हैं और आप इग्नोर कर रहे हैं, या आपको 30 साल की डायबिटीज है और स्टमक पैरालिसिस पहले से है, तभी वो सब होता है. ऐसे नहीं कि आपने शुरू किया और सडनली स्टमक पैरालिसिस हो गया. ये थोड़ा हाइप लोग कर देते हैं, और वही बात है कि जब सब लोग यूज कर रहे हैं तो ऐसे ही होता है. कोई ओजेम्पिक फेस बोल देता है, कोई ओजेम्पिक हैंड्स भी मैंने देखा, ओजेम्पिक बट, ऑल काइंड ऑफ थिंग्स आर कमिंग. अगर रैपिडली वेट लूज करते हैं, आप ये याद करिए, इन दवाइयों को भूल जाइए. कोई भी वजन एकदम से कम करता है बहुत लो कैलोरी डाइट पे जाके या बेरियाट्रिक सर्जरी करवा के, तो थोड़ी स्किन लटक जाती है, बोलते थोड़ा लटक रही है स्किन आपकी. दैट इज व्हाट इट इज, दैट इज ओलंपिक फेस. सो ये सब कोई ऐसे वो नहीं है जिनके लिए. मेन थिंग अगेन, गैस्ट्रिक पैरालिसिस का आप पूछ रही है, that is the primary action of these drugs, not to paralyze but slow down the gut movement. अगर किसी का पहले से ही गैस्ट्रिक पैरालिसिस है तो या वीकनेस है, तो उनमें एग्रीवेट हो सकता है. Sir, can we say that this is a magic drug? नहीं, मैजिक ड्रग तो मैं नहीं कहूंगा, बट ये बहुत रिमार्केबल डिस्कवरी है. ये एक बेंचमार्क डिस्कवरी तो है, और अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो आगाज है. अभी आप देखिएगा कि इसमें कितनी नई नई मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, ओरल भी आ रहे हैं, शायद साइड इफेक्ट्स कम करने वाले भी आ रहे हैं, मसल प्रिजर्व करने वाले भी आ रहे हैं. तो मैं तो ये सोचता हूं कि ये पूरा रास्ता खुला है फॉर हेल्पिंग ह्यूमंस, you know, who have disease or who are struggling with obesity or who have diabetes or fatty liver or, you know, so many other things. तो इसलिए ये डेफिनेटली एक लैंडमार्क या बेंचमार्क रहेगा, और इसके आगे जो आता जाएगा वो होपफुली इंप्रूवमेंट ही होगा. तो इसको इग्नोर तो नहीं कर सकते. ये नहीं बोल सकते कि ये सब ऐसे ही है, खाली फैड है. नहीं, आई थिंक इट्स अ सीरियस डिस्कवरी. लेकिन हो सकता है कि 10 साल बाद और साइड इफेक्ट्स भी नजर आए. So we have to be alert, like with every drug. So the thing which is important, and no one should take without the prescription of doctor. इसीलिए मैंने बार बार ये बात बोली, please don't venture and don't push your doctor. Let him decide on medical grounds what is required for you. So these new generation weight loss drugs, like we talk about like Ozempic as well as Mounjaro. So if we do the comparison, which one is better according to you? ऐसे वन लाइन नहीं है. अब जैसे आप एंटी डायबिटिक्स 10 तरह की होती हैं, कौन सी बेटर है, ये आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है. अगेन, ये डॉक्टर का डिसीजन है. तो दोनों के कुछ फायदे हैं एक दूसरे के ऊपर, तो वो तो डिपेंड करता है कि आपकी परिस्थिति क्या है, किस वजह से आपको दिया जा रहा है. वो डिसीजन भी आपको नहीं लेना चाहिए. वीगोवी है इंडिया में और मुंजारो है, दोनों एकदम फेमस पॉपुलर ड्रग्स हैं वेस्ट में. वीगोवी वहां ओजेम्पिक के नाम से जाना जाता है, मुंजारो ही है. तो दोनों के कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान है, ये आपको देख के करना चाहिए. फिर भी मुंजारो थोड़ा सा वेट लॉस, प्योर वेट लॉस में वीगोवी से शायद आगे है. जो भी स्टडीज आई हैं अभी तक, वो ये दिखाती है कि थोड़ा सा वेट लॉस मुंजारो में ज्यादा होता है. लेकिन इन दवाओं का काम सिर्फ वेट लॉस नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया. So we have to look at it like that. So जैसे कि आपने मोंजारो की भी बात की, तो these drugs are like कि बहुत सालों साल रिसर्च चलती है, फिर धीरे धीरे इनके साइड इफेक्ट्स पता चलते हैं. तो it should not be given in access, right? And no one should has addiction for these drugs. बिल्कुल नहीं होना चाहिए. कई बार ड्रग के साइड इफेक्ट्स बहुत साल बाद निकलते हैं. लेकिन आप ये फिर 2 पॉइंट्स बोलूंगा. 20 साल से दिस क्लास ऑफ ड्रग्स वी आर यूजिंग. 2018 से ओजेम्पिक यूज हो रहा है वेस्ट में. अब 2025 हो गया बात करते करते, बीच में कोविड आ गया, सबका ध्यान हट गया. मुंजारो को भी 3-4 साल. तो ये इतनी नई भी नहीं जितना लग रहा है. और जब भी ड्रग कोई मार्केट में आती है, उसके पहले 15 से 20 साल कम से कम उसके डेवलपमेंट में लगता है. तो आई डोंट थिंक ये प्रॉब्लम है, लेकिन इनडिस्क्रिमिनेट यूज विल बी अ प्रॉब्लम. Sir, somehow you also sometimes feel worried that कि इतना ज़्यादा डिमांड अचानक से बढ़ गया, लोगों में अवेयरनेस नहीं है, कभी इसके साइड इफेक्ट्स ना हो जाएं. आपके भी जहन में इस तरह की जो है कहीं ना कहीं
मुझे उतना ज्यादा अभी साइड इफेक्ट्स का एविडेंस नहीं दिख रहा है जिसके लिए मैं डरूं प्रिस्क्राइब करने में। बट जिसको पैनकेटाइटिस की हिस्ट्री है उसको नहीं देंगे, जिसको गैस्ट्रिक पैरालिसिस की हिस्ट्री है उसको नहीं देंगे, जिसके फैमिली में थायराइड कैंसर है उसको नहीं देंगे। तो ये तो लिखा ही हुआ है, इसके पहले जो यूज करें उनमें भी लिखा देंगे। तो इसलिए मैं तो मानता हूं अगर आपको स्पेशलिस्ट कोई एक्सपर्ट पे आप जा रहे हैं तो और सही सलाह ले रहे हैं तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ऑफ कोर्स आई कीप माई फिंगर्स क्रॉस्ड कि आगे जाके कोई रेयर चीज ना निकल आए, लेकिन अभी तो ऐसे कुछ नहीं दिख रहा है। सर देयर मस्ट बी सम डिफाइंड एज ग्रुप फॉर दिस। कौन ले सकता है? बच्चे ले सकते हैं या नहीं ले सकते? एडल्ट्स ले सकते हैं? व्हाट डू यू सजेस्ट? ये अभी इंडिया में तो एडल्ट्स के लिए ही है, बाहर उन्होंने बच्चों में भी यूज शुरू कर दिया है, अप्रूव हो गया है, बट इंडिया में एडल्ट्स के लिए ही है। टिपिकल पेशेंट जो हमारे हैं वो तो 50-60 ईयर ओल्ड पीपल विद डायबिटीज, ओवरवेट, नॉट गेटिंग कंट्रोल। उसमें हम पहले इनके जो पुरानी दवाइयां थी इनकी वो अब ये ऐड करते हैं, तो उससे शुगर भी कंट्रोल होती है, वेट भी कंट्रोल होता है, कार्डियक प्रोटेक्शन, 20% लेस कार्डियक इवेंट्स, रिडक्शन इन फैटी लिवर, इट इज अप्रूव्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ फैटी लिवर। तो ये सब बेनिफिट्स हमारे पेशेंट को मिल रहे हैं। तो एक तो ये ग्रुप हुआ, उसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। यंगर पेशेंट्स में देना पड़ता है कभी कभी जब बहुत सीवियर ओबेसिटी होती है, या लड़कियां जिनको पॉलीसिस्टिक ओवरी हो और प्रेगनेंसी प्लान कर रही हो, वेट की वजह से न कर पा रही हो, उनमें भी यूज करते हैं। वैसे मैं आपको बताऊं, मैंने सारे आंसर्स अपनी बुक में लिखे हैं, इसीलिए वो बुक लिखी गई है जिससे कि पेशेंट्स को ऑथेंटिक साइंटिफिक इंफॉर्मेशन मिले। तो द वेट लॉस रेवोल्यूशन, हाउ टू यूज वेट लॉस ड्रग्स, वेयर आई हैव ट्राइड टू डिफाइन ऑल दैट इज अवेलेबल इन द नॉलेज about these drugs as of today. Merits and demerits. जी 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 बिल्कुल। सर अगर हम बात करें कि क्योंकि इस तरह की भी बातें सामने आती हैं, लोग इस तरह के सवाल पूछते हैं कि एक बार इसका कोर्स आप अगर शुरू करते हैं तो आपको लगातार सालों साल लेना पड़ता है, कितना सही है ये? बिल्कुल सही है। शॉर्ट टर्म जो सोच रहे हैं 2 महीने ले लें, हम 3 महीने वजन कम कर लें और फिर छोड़ दें, नॉट ओके। स्पेशली अगर आप एक कंडीशन ट्रीट करने जा रहे हैं, खासतौर से डायबिटीज अगर है, तो डायबिटीज के पेशेंट तो अपनी दवाई इंसुलिन भी लेते हैं तो लाइफ लॉन्ग ही लेते हैं ना। कई बार जो भी दवाई होती है, कुछ दवाई तो चलती है लाइफ लॉन्ग, तो ये उसी तरह से है, ये भी लाइफ लॉन्ग चलेगा बहुत लोगों में। जो लोग सिर्फ वेट के लिए ले रहे हैं, जब वो अपना वेट अचीव कर लें तब वो डॉक्टर की सलाह से धीरे धीरे इसको कम कर सकते हैं। कुछ जिनकी ओबेसिटी बहुत ज्यादा नहीं थी वो शायद इसको छोड़ भी सकते हैं। कुछ जिनका BMI 40 है, 50 है, जो बैरिएट्रिक सर्जरी के लिए जा रहे थे, उनको तो लेना ही पड़ेगा। Sir, recently we got the information from drug regulators that some of the insulin and weight loss injections is stolen during the transit. So he also recommended that it is important to tell people कि अगर उसका एक proper आपको एक temperature में रखना होता है, क्या इसके किसी तरह के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? ये तो बहुत ही खतरनाक चीज है। ऐसी चीज आप डिमांड सोचिए कि लोगों ने यही चोरी कर लिया, तो आई मीन ऑब्वियसली इट्स नॉट अ गुड थिंग, एंड ऑब्वियसली ऐसी चीज गलत हाथों में जाएगी, या तो कोई एक्सपोर्ट करेगा या कुछ करेगा, तो दिस इज नॉट अ गुड थिंग। मैं तो यही बोलूंगा, रिलायबल एस्टैब्लिश्ड केमिस्ट जिनसे आप इंसुलिन के लिए जिनको ट्रस्ट कर सकते हैं, कि उसमें भी कोल्ड चेन चाहिए होता है, वैक्सीन के लिए जिनको ट्रस्ट कर सकते हैं, उन्हीं से लें हमेशा। सर, व्हाट आर द की कंसीडरेशंस फॉर दीज ड्रग्स? आई थिंक इन ड्रग्स को हमें ड्रग्स की तरह ही लेना चाहिए। मतलब हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि सडनली सब लोग कि हवा में मिला देंगे तो सब ठीक हो जाएगा, या नल के पानी में मिला देंगे तो सब ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं है। ये दवाइयाँ एक बहुत बड़ा प्रोग्रेस है ट्रीटमेंट में, क्योंकि ओबेसिटी से ही सारी डिसऑर्डर्स जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हम लोग बोलते हैं, वो ओबेसिटी से ही शुरू होती हैं। इंडिया में डायबिटीज क्यों बढ़ रही है? ओबेसिटी की वजह से बढ़ रही है। ये याद रखना होगा कि पब्लिक हेल्थ मेजर्स और ओबेसिटी में ये दवाइयां नहीं आती हैं। ये आप सोचो कि इंडिया से ओबेसिटी खत्म करनी, वो डाइट, एक्सरसाइज, मेटाबॉलिक हेल्थ पूरा ठीक से रखना, प्रिवेंशन, उससे होंगी। लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो लाइन क्रॉस कर चुके हैं और वो वजन नहीं कम कर पा रहे हैं, और उस वजन की वजह से उनकी हेल्थ को नुकसान हो रहा है। इसलिए these drugs I think are a major advance, but as I said again, या तो साथ में कोई comorbidity जो हम लोग बोलते हैं that should be there, or the obesity should be significant enough,
only then we should consider using them. They are not for everybody, and for purely cosmetic purposes, I don't believe they should be used. जैसे कि डॉक्टर अमरीश ने बताया और बहुत क्लियरली बताया है कि these drugs are not for everyone. These should be recommended by certified doctors. Then only these drugs should be taken. Thank you so much, sir, for joining us and sharing such an important information. And everyone wants to know about this, how to use these drugs. Thank you so much. Thank you, Shalini.